Namaskar children, I hope you all are fine. So we have done one chapter in chemistry, one in physics. Now it's the turn of biology. In biology chapter number 5, the fundamental unit of life. Life. If we talk about living organisms of any kingdom, whether lower organisms or higher organisms, animal, human being, anything, they are made up of one fundamental basic structural unit. That smallest unit is called cell. That is called cell. The word is derived from the Latin language. The word is cellule. Cellule means a small room. See, when I am saying this is derived from the word the Latin, you must be thinking that there are many words which are derived either from Greek, Latin or Sanskrit. For example, autotrophs, hetero, auto, gastro, hepato, cyto, like these things. Because these languages are very ancient languages. Our first, the pioneer educationists have been from these particular origins only. And that's why they wrote their all material in those particular languages only. And English is very new language. We are translating these in English, so those are very new. Earlier they were in Greek, Latin, Sanskrit, on those particular languages only. So as we were saying, cell is word from the Latin word cellule. Cellule means a small room. Like if you talk about the skyscrapers, flats, वहाँ छोटे छोटे रूम्स होते हैं, या आप बात करें एक पूरी वॉल की, तो वहाँ छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं जिससे पूरी वॉल बनती है. सिमिलरली वो ब्रिक वॉल में वो एक रूम स्काईस्क्रैपर में वर्क करता है सेल की तरह. सेल का फिर पूरा ग्रुप आगे टिश्यू बनता है एंड देन सो ऑन. So the word is derived from this particular word. The study of cell. Study of cell is called cytology. Cyto word is used for basically cell. And the different aspects of cells की study is called cell biology. Is called cell biology. So cell का जो हमारे पास fundamental जितनी भी structures और जितनी टोटल स्टडी आई है, प्रॉपर्टीज आई हैं, वो वन बाय वन आई हैं. फॉर एग्जाम्पल, सविता ने कुछ काम किया, उसने कोई थ्योरी प्रपोज की, इतने में सरिता को लगा अच्छा अगर ये ऐसा हो सकता है तो इसमें ये भी तो हो सकता है. फिर उन्होंने उस थ्योरी में कुछ एडिशन या कुछ डिलीशन या कुछ डीमेरिट्स बता के एक और थ्योरी दी. फिर संजना को लगा कि अच्छा अगर सविता और सरिता कर सकते तो वही कांट आए. सो सिमिलरली देयर वर मेनी पार्टीज ऑफ साइंटिस्ट. They were working upon these things. Like if I talk about Savita and party, तो उसके लिए word use होता है Savita et al. Et al. So first of all, जो significant work हुआ वो रॉबर्ट हुक जी ने किया in 1665. Slice of cork. उन्होंने इसमें जो कुछ भी स्टडी किया फिर बाद में उन्होंने पब्लिश किया in book माइक्रोग्राफिया. उनको इसमें कुछ सेल्स नजर आई. After 8 or 9 years and finally in 1674, Leeuwenhoek जी आए. Leeuwenhoek ने कहा, उन्होंने for the first time pond water से living cells को लिया और with the help of some improved microscope, he studied these things. अब माइक्रोस्कोप की बात करें तो पहले बहुत ही कोर्स माइक्रोस्कोप्स होते थे, फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड वर्जन आया, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आए. कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स जो आप देखते हैं जिसमें आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस होता है, 10x, 45x, 15x ऐसी चीज़ें लिखी होती है. दैट इज फॉर द मैग्निफिकेशन. एंड देन इन 20th सेंचुरी अप्रॉक्सीमेटली इन 1940 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से रन होता था एंड इट वाज रियली अ वेरी वंडरफुल मिरेकल इन साइंस. Leeuwenhoek जी ने जो ये काम किया था that was with the help of some improved microscope, not compound or electron microscope. Then in 1831 रॉबर्ट हुक ने कुछ डिस्कवर किया कि सेल के अंदर एक कर्नल होता है जो सेल को कमांड करता है and finally he discovered nucleus. Then परकिंजे आए. परकिंजे ने 1839 पे he coined the term दी उन्होंने प्रोटोप्लाज्म. एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है. जब हम सेल की बात करेंगे, सेल में न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. दैट इज कॉल्ड
न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म ये वर्ड, ये टर्म किसने दी थी? परकिंजे ने 1839 में। एट द सेम टाइम जब परकिंजे काम कर रहे थे उसी टाइम पे दो लोग और काम कर रहे थे, पार्टी कर रही थी पूरी, पर उन दो लोगों के अंडर उनके एसोसिएट्स वर्क कर रहे थे, शेल्डन एंड श्वेब। और इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सम टाइनी सेल्स, दोज कॉल्ड सेल्स। उसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई व्हिच वी कॉल सेल थ्योरी। सो द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय शेल्डन एंड श्वेब। यू माइट बी थिंकिंग कि मैम बायोलॉजी करा रहे हैं या हिस्ट्री करा रहे हैं? ऑफ कोर्स दिस इज हिस्ट्री और बायोलॉजी बेटा। एक्चुअली दीज थिंग्स आर फॉर टू पर्पसेस। वन इज कि हमें ये पता चले कि सेल जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमारे पास है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, वन। सेकेंड, जो अपने एनटीएससी और नीट के एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ पोर्शन स्पेसिफिक होता है इन्वेंशंस और साइंटिस्ट के लिए, सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर दैट एज वेल, राइट। सो शेल्डन एंड श्वेब ने जो 1839 में सेल थ्योरी दी थी और परकिंजे ने भी 1839 में टर्म कॉइन की थी प्रोटोप्लाज्म, उसके कुछ सालों बाद हक्सले जी आए 1868 में। उन्होंने कहा कि ये प्रोटोप्लाज्म ही तो है जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, कि लाइफ का जो बेस है, जो सेल है, सेल का बेस क्या है? प्रोटोप्लाज्म। Then Rudolf Virchow in 1855 he said omnicellula is cellular. बोलो मेरे साथ, omnicellula is cellular means all cells are derived from the pre-existing one. All cells are derived from the pre-existed one, right? So that was all about the history of the discovery of cell. Now we will move to the topic cell. Now, if we talk about the structural organization of cell, cell का क्या organization है, कैसे बना हुआ है, क्या उसमें चीजें हैं, क्या वो work perform करता है, and so on. तो जो cell है बेटू, right, उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे कुछ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, which are called as organelles, and these are called cell organelles. So what are the functions of these cell organelles? Making new materials, cleaning, like एक घर में कितने सारे डिफरेंट काम होते हैं, तो उसी तरह से सेल में भी होते हैं। क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, नया मटेरियल बना है तो कोई मटेरियल ऐसे भी तो होगा ना जो पहले से वेस्ट पड़ा है कि उसको निकालना जरूरी है, उसके लिए अलग से इनके पास ऑर्गेनेल्स होते हैं। कोई जो नई प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन बनाना है, लिपिड सिंथेसिस करना है, आरएनए सिंथेसिस करना है, सो देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर विच डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर व्हिच आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। एक टिपिकल सेल की अगर हम बात करें तो उसमें ये तीन हेडिंग्स के अंडर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर की कवरिंग होती है जो अंदर के पार्ट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। सो दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल व्हिच सेपरेट्स द इनर कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकंड वन इज न्यूक्लियस जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, nucleus, nucleoplasm, nuclear envelope, and then cytoplasm. We were talking about cytoplasm, the semi-liquid which is present in the cell. सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती हैं वो इसकी प्रेजेंस में होती है। इन तीन के अलावा आप देखते हैं प्लांट सेल, फंजाई और मैनी बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर कवरिंग होती है, एडिशनल आउटर कवरिंग, which is called cell wall, which is called
cell wall. So if I talk about is cell wall present in animal cell, your answer will be no. If I say is cell wall is present in plant cell, then your answer will be yes. Because in plant, hardness is there. In animal, no hardness is there like plants. That's why this is the main difference between these two types of cells. Now we're talking about one by one their functions and their coverings. Plasma membrane. What are the functions of plasma membrane? Which we are talking about that this is the outer covering. So number one, it gives shape. जैसे घरों के डिफरेंट टाइप्स की शेप होती हैं कि ये ऊपर से ऐसा है कैसा है, तो वो बाहर की कवरिंग ही तो है, आउटर लेयर ही तो है जो उस घर की शेप को स्पेसिफाई करती है. सो सिमिलरली इट गिव्स शेप टू द सेल. मैकेनिकल बैरियर एक बार का काम करती है बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर वाले को बचाए रखने के लिए. एंड दिस इज परमिएबल. परमिएबल मीन्स अपने थ्रू चीजों को पास होने देती है और कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही पास होने देती है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव परमिएबल. स्पेशलाइजेशन. कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए आप देखते हैं कभी कभी ये मॉडिफाई हो जाते हैं कि कोई और वर्क कर पाए, कोई और स्पेशल टास्क कर पाए. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलाई होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट. सो दैट इज स्पेशलाइजेशन. सेल कंटिन्यूटी. अगर एक सेल यहाँ है उसकी साइड में दूसरी सेल है तो एक के साथ एक कंटिन्यूटी बनी रहती है. मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस. अब कोई चीज अपने घर में आ रही है, गेट खोलना है नहीं खोलना है, तो वो मूवमेंट. अब ये जो मूवमेंट होती है सेल में सब्सटेंसेस की, दिस इज ऑफ टू टाइप्स. सो व्हिच कम अंडर द हेडिंग ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन. ट्रांसपोर्ट इज आना जाना कि कौन सी चीज आ रही है कौन जा रही है. सो दिस ट्रांसपोर्ट यू कैन से मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एज नेम इंडिकेट्स, एक्टिव मीन्स जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो, पैसिव मीन्स जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, आराम से सुस्ती से काम हो. पैसिव में आते हैं हमारे पास डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की जब आप डेफिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि देयर इज द ओनली डिफरेंस. ऑस्मोसिस में बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, जबकि डिफ्यूजन में नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बल्क ट्रांसपोर्ट होता है और एक फैसिलिटेटेड, जिसको हम फैसिलिटेट करते हैं, जो एक्टिव आयन पंप्स, पोटेशियम सोडियम पंप्स. बल्क ट्रांसपोर्ट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड. सेल के अंदर कुछ चीज आए, एंडोसाइटोसिस. सेल के बाहर कोई चीज जाए, एक्सोसाइटोसिस, राइट. So that was all about the transport through the cell membrane and the functions of plasma membrane. See, animal cell organelles, this is the chart. If you have a look, this is nucleus, inner part is nucleoplasm, nuclear pores, nucleolus, centromere, and the outer covering is nuclear envelope is present. In its genetic material is present, which is called chromatin. And then chromatin contains chromatin filament, which contains again nucleosomes and histones, and DNA as well, deoxyribonucleic acids. In DNA, different types of nucleotides and nucleosides are there. In nucleotides, you will see ribose, sugar, pentose, ribose, sugar, plus phosphate group, plus nitrogenous bases, that purines and pyrimidines. So they are present inside it. I'll explain these in next video. Cell membrane, Golgi bodies, centriole, ribosomes, endoplasmic reticulum, cilium or flagellum. Singular is cilium or flagellum, plural is cilia or flagella. Mitochondria, lysosomes, peroxisome. If you see, is there any plastid? No, because this is animal cell organelle chart. Plastid is present in plant cells. That chlorophyll, chloroplast you have read in photosynthesis, right? So if we talk about these cell organelles, whether they are covered by a membrane, whether they are covered by double membrane or they are membraneless, so under these there are three, we can categorize under three categories. Double membrane, mitochondria, outer and inner layer, and plastids, these are double membranes.
सिंगल मेम्ब्रेन, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स. विदाउट मेम्ब्रेन, जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स. So in next video I'll explain these cell organelles. By that time watch this video twice, read the chapter and do study better and keep asking me if any query is there. Okay? Bye bye.